On the 22nd anniversary of the Parliament terror attack, a shocking security breach occurred at the new Parliament House this afternoon. First, two protesters were detained outside the Parliament after they staged a demonstration with coloured smoke emanating objects. The two have been identified as Neelam from Haryana's Hisar and Amol Shinde from Maharashtra's Latur. Around the same time, there was a massive security breach inside the Parliament by two individuals. One man jumped into the Lok Sabha well from the visitors' gallery. As per eyewitness accounts, he pulled out a smoke stick from his shoe and set it off. Both men were overpowered and handed over to the cops. Intruders have been identified as Sagar Sharma and Manoranjan, both engineering students hailing from Mysuru. The visitor's pass that intruder Sagar has used has been accessed by Times Now. It has the name of BJP MP Pratap Simha as the one on whose reference the pass was issued. Times Now has also accessed details of the possible motives. Initial investigation suggests that intruders wanted to raise the issue of unemployment. Now, they were inspired allegedly by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, who threw a bomb in the Central Assembly in 1929. However, they have used smoke bombs as the intention was not to hurt anyone. It's also learned that all the four suspects were connected to each other. Two more suspects are under the lens for giving logistical support, with one of them being identified as Lalit Jha from Gurugram. जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर, वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैं बोला क्या बात होगी? बोला कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। Meanwhile, Manoranjan's father has denounced the actions of his son, saying no one should resort to such activities. Sir, ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಹೋದ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅವನು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಕಾದವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಈಗ ಮಗನ ಸೊ ಇದು ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಗನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು, ಯಾರ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಖಂಡನೀಯ. ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಪನಾಗಿ. All right, joining us for more on this, we have with us Gurjit Singh Aujla, who's a member of Parliament of the Congress Party. Mr. Aujla, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमें बताइए, हाउस में हुआ क्या था, क्या देखा था आपने उस वक्त? औजला साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। जोशी मैं उन्हें करता टाइम्स नाउ ते मैं जरा। जी, टाइम्स नाउ से माधव बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये, आप ऑन एयर हैं, लाइव है इस वक्त टाइम्स नाउ पे। आपसे ये सवाल है कि उस वक्त आपने हाउस में क्या देखा था? जी, उस समय मैं 0 आवर में मेरा क्वेश्चन था। मैं 17 नंबर पे बोल पे बैठा था। 20 लोग होते हैं, हाउस से डिजर्न होने को था। तो वहां से पीछे से आवाज आती है, वहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे गैलरी है, स्पीकर के बिल्कुल सामने होती है। तो ये वो पकड़ो, कूद जाते हैं 2 लोग, पकड़ो। तो मैंने जब देखा तो 2 लोग कूद रहे हैं, तो एक
हमारे उठते समय कोई 1-1.5 मिनट का ही सारा काम था। तो हमने जब उसको ललकारा आगे से, तो वो स्पीकर की तरफ भागने लगा, चेयर के ऊपर से, जो मतलब जो जहाँ सांसद बैठते हैं, तो सबका मुंह स्पीकर की तरफ होता है। लोगों को थोड़ा पहले पता नहीं चला। फिर जब उसने कुछ निकालने लगा, जूते से कुछ निकालने लगा, तो हम मैंने फिर जब उसकी तरफ भागे तो हनुमान बेनीवाल थे आगे, उन्होंने आगे से होकर उसको पकड़ा, हमने उसको पकड़ लिया। तो मैंने बोला कि एक और है, क्योंकि मैंने दोनों को देखा था, इनको नहीं पता था। वो पीछे छिप के उसने वहां से वो बम होता है जो स्मोक बम था वो निकाला, और वो भी आगे बढ़ने लगा। तो फिर उसको मैंने दबोच लिया, और मैंने वो बम था जो वो काफी मुशक्कत के बाद 15-20 सेकंड उसका छीना मैं तो बम लेके भाग गया बाहर को कि ये कोई पता नहीं क्या चीज होगी। तो वो जो आप बम अपने हाथ में लेके आप भाग गए वहां से? मैंने उनको बोला कि इसको बाहर ले जाओ। हाँ, मैं बिल्कुल मैंने हाथ से उसके छीन के और बाहर को लेके भागा मैं पार्लियामेंट। तो क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आपको दिखा था? आपको पता था कि स्मोक बॉम्ब है, सिर्फ जैसे होली का पटाखा होता है उस तरह की चीज है, कि क्या पता था आपको उस वक्त क्या चीज है वो? भाई साहब, ये तो उस समय कोई इतनी सोचने की बात थोड़ा, ये कोई प्लानिंग थोड़ा कर सकते थे। ये तो जो दिमाग ने किया, जो परमात्मा ने बख्शिश है, हमारे जीन्स में है, हम कह सकते हैं गुरुओं की बख्शिश है, मेहर है। हमने तो सीधा लेकर उसको बम को, मैं बाहर में भागा के, अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, कोई मतलब अंदर ना फटे, ये मेरे दिमाग में था कि इसको रोक के मैं तो उसको पकड़ने लगा था। उसने जला दिया आगे से, वो नीचे पैर से निकाल कर वो आगे बढ़ने लगा। वो भी काफी सेहतमंद था। तो चलो वो मैंने उसको दबोच के उसका छीना, वो थोड़ी हाथापाई भी हुए हम उसके साथ। जी, हाथापाई वही वीडियो में आपसे यही पूछने वाला था। अगला सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं जहां आप ही नहीं, काफी सारे सांसद दिख रहे हैं काफी गुस्साए हुए, और कुछ लोग हाथ साफ भी कर रहे हैं। तो हुआ क्या था उस वक्त? नहीं, वो पहला था, ये दूसरा पीछे था। ओके, उसकी वीडियो नहीं शायद बनी है, वो ये पीछे था जिसको मैंने बम छीना है। वो जो धुआं हुआ है वो उसी बम का, वो जो पीछे वाले ने बम जो वो लहराया है, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो उसी समय जो 10-15 मिनट में उसमें स्मोक निकला, उसी का सारा वो पूरा पीला हो गया था उस। तो मेंबर्स का मतलब मेरे पूछने का उद्देश्य है कि उस वक्त मेंबर्स डरे हुए थे, गुस्साए हुए थे, क्या सेंटिमेंट था उस वक्त? नहीं, देखो उस समय तो एक बार ऐसा हो गया था कि बहुत बड़ा हमला हो गया कोई, क्योंकि वो तो सीधे मतलब वो ढूंढ रहे थे, जैसे वो जूता उतारने की कोशिश कर रहा था जो आगे भाग रहा था कि जूते में कुछ है इसके। तो उस समय तो मतलब आप जब ऐसा मंजर होगा कि कभी सोचा भी नहीं था, किसी का ध्यान भी नहीं था इस बात में, तो वो आदमी मतलब पूरे जोर से निकल रहे हैं आगे को। तो उसको हमने चलो देशवासियों के कह सकते हो प्यार से, हमारे लोगों के प्यार से, जिनका हमारे पास आशीर्वाद है, परमात्मा के प्यार से, गुरुओं के जो आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमने उसके साथ टकराए, सीधे जाकर उसको मतलब पकड़ा। तो ये तो साहब सवाल ये भी उठता है कि आप भी एक सांसद हैं, ग्रेमा है पार्लियामेंट की, यार हमारा तिरंगा है। हाँ जी, बोलिए जी, नहीं बोलिए प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात। ये तिरंगा है हमारा देश का, इसके लिए हम लोग हमेशा ही जज्बाती रहते हैं। ये देश की आजादी के पहले का भी आप इतिहास निकाल लो, चाहे बॉर्डर में लड़ने की बात हो, ये कोई मैं 1-1.5 सेकंड में सभी सवाल कर रहे हैं कि क्या प्लान हुआ। ये प्लान करने का तो समय ही नहीं था, ये तो सीधा समय था उसके साथ उसको रोकना है किसी तरह, आगे ना बढ़े। आगे सांसद ज्यादा थे, स्पीकर की तरफ वो बढ़ रहे थे, स्पीकर चेयर की तरफ, उनको वहां से जाने से रोकना था। पता नहीं ये क्या करेंगे आगे होकर। करेक्ट। और अजला साहब सवाल ये भी उठता है, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैसूर से प्रताप सिम्हा, उनके बेसिस पे, उनके रिकमेंडेशन, उनके ऑफिस के बेसिस पे एंट्री हुई है इस व्यक्ति की, और कई सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन में दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड चेक या कुछ इंडिविजुअल के बारे में जानकारी होनी चाहिए गैलरी में अलाउ करने से पहले। क्या सोच है आपकी इसके बारे में? बात यह है जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये लोगों के चुन के आते हैं, तो बहुत लोग पार्लियामेंट देखने जाते हैं, हम भी लोगों को पास देते हैं, हम कितना के तहकीकात नहीं करते, हम तो ये देखते हैं कि ये लोग हमारे जानने वाले, इसके साथ 4 आ रहे हैं, इसके साथ 2 आ रहे हैं, हमारे भी पीए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसकी राजनीतिक तौर पर वो अपोजिशन का है तो हम उसको, हमारे तो अपोजिट ही है बीजेपी का, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये ऑपोजिशन का नहीं निकला, कि ऑपोजिशन का, क्योंकि हम भी सब सोच रहे थे कि हमारे पास पे भी जा सकता है कोई मतलब पूछ के लोग ले जाते हैं, साथी लोग होते हैं कि मेरे साथ 4 दोस्त हैं, वो किसी से भी करवा सकता था, तो कहीं ऑपोजिशन का होता। मेरे को तो ये था कि अब तक ऑपोजिशन वाले को शायद जेल में भी डाल देते। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां देश का सवाल है वहां
जो माड़ी सोच का आदमी है उसको धर्म जात से अलग रख के देखो। उसको ये मत करो कि ये हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, इसको मत करो। जो माड़े दिमाग का आदमी है, जो गलत तंत्र है, वो किसी में भी पैदा हो सकता है। उसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए पार्टी के साथ। लेकिन ये पीछे हुआ है इतना, और इसके लिए हमें सबक लेने की जरूरत है कि जब देश का सवाल आता है, जब देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, हम लोगों को एक मुट्ठ होकर खड़े होना चाहिए। वहां ये नहीं होना चाहिए ये मुसलमान आ गया, या कहीं वो मुसलमान निकलाते, कोई सिख निकलाता है। सवाल भी उठा रहे हैं औजला साहब की ये बात सीखने की जरूरत है हमें। सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है तो कहां ब्रीच हुई है? क्या पार्लियामेंट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, होम मिनिस्ट्री की बनती है? ये सवाल उठ रहे हैं कि कहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, चाहे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर आती है। सबसे बड़ी बात है, नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। हम तो सोच रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी है, लेकिन इसने ये शो कर दिया कि नई टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। हमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो इतना बड़ा पार्लियामेंट हमने बनाया है, नए युग में बनाया है, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी है। अभी हम सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि हम जब देश में ऐसा होता है तो इसमें राजनीति करने का समय नहीं है, हम इकट्ठे होकर इसको और बेटर करना है। All right. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत सिंह औजला. We also have Anurag Naidu and Rohan Mitra joining us. I'm going to request both of you gentlemen to stay on with us. We're going to slip into a very quick break. We'll be back with this debate in just a few moments. Welcome back. We are discussing the major security breach in Parliament earlier today, and let's take this across to our guests, Rohan Mitra, and first going across to Anurag Naidu. Anurag Naidu, there are several who are questioning this particular breach that happened to have taken place on the 22nd anniversary of the 13 December Parliament attack. Fortunately, there was no damage to property or life this time round, but there are questions about how such a massive security breach could have taken place and who's going to take the onus for it. Madhav, first of all, thank you for having me on the show, Madhav. But I'd fairly disagree from the title of Parliament attack, Madhav. I would probably call it as a security breach. Parliament security protocols have been broken. Everything is fine, but that's not call it anniversary of the Parliament attack. Exactly, but that's some people are using this hashtag, and some people are also using it in that narrative that when this activist Neelam or whichever was caught, and then she was telling it's about the unemployment, it's about the jobs, it's about other social issues, and she's been fighting as if she's a big member of parliament or whatever. But the fact of the matter is, people are trying to promote this narrative that it is about the unemployment. You have to also understand, we surfaced some videos also that I'm seeing. I need to validate. There are links with this activist with the Congress party or some other political party or outfit, and certain political outfits are also trying to politicize that it's a failure of the government, and this should not happen in the first place. Yes, it's a security breach. Let's understand. Second, let's also understand, Madhav, you've been to Parliament several times. I've been to the Parliament, visited box few times, and once you enter, as just nothing in our hand. But it's up to us to maintain the decorum and maintain ourselves and control ourselves. Look, when I'm saying a parliament attack or a typical breach, in my view, yes, it's a way of protesting. These people have protested, and yes, there is a breach. We would improve the measures. I don't know how they've got this cans, the smoke guns. We can be better in the security, but let's just to politicize this issue does not. We shouldn't politicize it. Rohan Mitra says, Anurag Naidu, of course the system can be improved, but there's no need to play politics. Your response? You interviewed the gentleman. I mean, I'm going to call him a hero because he didn't know at the time how big a threat or not a threat that moment was when these two intruders jumped onto the parliament, and he said that we are Indians today. So when he set such a benchmark, I'm not going to take this away and politicize it, but I'm going to put a few points across which everyone needs to hear. Quickly. Running out of time. Yeah. That's it. I'm just saying, if today this, the gentlemen, the people who were caught they were Muslims, then, and if the people were linked to the Congress MP, the present disposition, the present incumbent government, they wouldn't be saying the things which this gentleman. But why are we discussing that? Why are we bringing in religion into this? Why will we not bring it up? Because this is the conversation which has happened in India since this Modi government has taken over. Everything has become about religion, anti-nationals, terrorists. Okay, let's leave it there. Let's leave it there. Obviously, there are very divergent views. Rohan Mitra, Anurag Naidu, thank you for joining us. I'm afraid we had very little time on this debate, but certainly there are a number of questions coming up from each side. Remains to be seen, of course, whether there will be a formal inquiry into this entire matter. We'll have to leave it there, gentlemen. Thanks so much for joining us.